ভেকচিন সকলোকে ল'বলৈ আমি বাধ্যতামূলক কৰাইছোঁ। সেইটো ভেকচিন ল'ব লাগিব আৰু ভেকচিন যদি 2 পালি কোনোবাই নলয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিমানখিনি হিতাধিকাৰী স্কিম আছে এই স্কিমখিনি বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট আমি ফেয়াৰ শ্বপতো চাম, সুলভ মূল্যৰ দোকানত চাম, আমি অন্যান্য যিখিনি হিতাধিকাৰীৰ পেঞ্চন বা অন্যান্য কথা আছে সকলোকে সেইখন চাৰ্টিফিকেট চাই হিতাধিকাৰীৰ আঁচনিবিলাক মুকলি কৰি দিয়া হ'ব প্ৰত্যেকটোতে। গতিকে হিতাধিকাৰীৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভেকচিনো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এই কথাটো অহা মাহৰ পৰা বলবৎ হ'ব। অক্টোবৰ মাহ শেষ হৈছে, নৱেম্বৰৰ পৰা এইখিনি বলবৎ হ'ব আৰু ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক। এতিয়া ভেকচিন টপ প্ৰায়ৰিটি আৰু লকডাউন কোনোপধ্যে ৰাজ্যখনত লকডাউন নহয়। ভেকচিন সকলোকে ল'বলৈ আমি বাধ্যতামূলক কৰাইছোঁ। সেইটো ভেকচিন ল'ব লাগিব আৰু ভেকচিন যদি 2 পালি কোনোবাই নলয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিমানখিনি হিতাধিকাৰী স্কিম আছে এই স্কিমখিনি বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট আমি ফেয়াৰ শ্বপতো চাম, সুলভ মূল্যৰ দোকানত চাম, আমি অন্যান্য যিখিনি হিতাধিকাৰীৰ পেঞ্চন বা অন্যান্য কথা আছে সকলোকে সেইখন চাৰ্টিফিকেট চাই হিতাধিকাৰীৰ আঁচনিবিলাক মুকলি কৰি দিয়া হ'ব প্ৰত্যেকটোতে। গতিকে হিতাধিকাৰীৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভেকচিনো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এই কথাটো অহা মাহৰ পৰা বলবৎ হ'ব। অক্টোবৰ মাহ শেষ হৈছে, নৱেম্বৰৰ পৰা এইখিনি বলবৎ হ'ব আৰু ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক। এতিয়া ভেকচিন টপ প্ৰায়ৰিটি আৰু লকডাউন কোনোপধ্যে ৰাজ্যখনত লকডাউন নহয়। ভেকচিন সকলোকে ল'বলৈ আমি বাধ্যতামূলক কৰাইছোঁ। সেইটো ভেকচিন ল'ব লাগিব আৰু ভেকচিন যদি 2 পালি কোনোবাই নলয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিমানখিনি হিতাধিকাৰী স্কিম আছে এই স্কিমখিনি বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট আমি ফেয়াৰ শ্বপতো চাম, সুলভ মূল্যৰ দোকানত চাম, আমি অন্যান্য যিখিনি হিতাধিকাৰীৰ পেঞ্চন বা অন্যান্য কথা আছে সকলোকে সেইখন চাৰ্টিফিকেট চাই হিতাধিকাৰীৰ আঁচনিবিলাক মুকলি কৰি দিয়া হ'ব প্ৰত্যেকটোতে। গতিকে হিতাধিকাৰীৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভেকচিনো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এই কথাটো অহা মাহৰ পৰা বলবৎ হ'ব। অক্টোবৰ মাহ শেষ হৈছে, নৱেম্বৰৰ পৰা এইখিনি বলবৎ হ'ব আৰু ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক। এতিয়া ভেকচিন টপ প্ৰায়ৰিটি আৰু লকডাউন কোনোপধ্যে राज्यखनत लॉकडाउन নহয়। अब रहा सवाल जहाँ तक कि मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फिरका परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। भाई खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है कोई हारती है, तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये बताता है कि हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको। ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज एक 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पर उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अनाप शनाप उसके बारे में बकवास बका जा रहा है। शर्म की बात है, अफसोस की बात है। वो तो इंडिया की टीम के लिए खेल रहा था ना। अब रहा सवाल जहाँ तक कि मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फिरका परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। भाई खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है कोई हारती है, तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये बताता है कि हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको। ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज
एक 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अनाप शनाप उसके बारे में बकवास बका जा रहा है। शर्म की बात है, अफसोस की बात है। वो तो इंडिया की टीम के लिए खेल रहा था ना। अब रहा सवाल जहां तक कि मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फिरका परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। भाई खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है, कोई हारती है। तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये बताता है कि हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको। ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज एक 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अनाप शनाप उसके बारे में बकवास बका जा रहा है। शर्म की बात है, अफसोस की बात है। वो तो इंडिया की टीम के लिए खेल रहा था ना। अब रहा सवाल जहां तक कि मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फिरका परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। भाई खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है, कोई हारती है। तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये बताता है कि हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको। ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज एक 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अनाप शनाप उसके बारे में बकवास बका जा रहा है। शर्म की बात है, अफसोस की बात है। वो तो इंडिया की टीम के लिए खेल रहा था ना।